हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। एंड मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार। एंड आज हम जो है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 के क्रैश कोर्स में इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेक्चर वन में पार्ट वन में हमने सबसे बेसिक जो है लॉ ऑफ डिमांड समझा था, उसको आराम से अच्छे से समझा था बिकॉज इट वाज इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन आया था। अब जो है रिमेनिंग जो माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है हमारे रिगार्डिंग कि क्या एक्सेप्शनल गुड्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते, गुड्स विच डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, देन वी विल लुक अपॉन मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस मैकेनिज्म, एंड लास्टली वी विल लुक अपॉन टाइप्स ऑफ मार्केट। साथ में यहाँ पे जो है ये मार्केट मैकेनिज्म, ऑब्वियसली ये सब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, तो इनका एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे वो भी हम ब्रीफली देखेंगे। So without any delay, let's start. And again, see, please do like and subscribe our channel. We are bringing this initiative, and trust me, our sole purpose is to ensure that you get maximum benefit and you are able to clear prelims with this initiative. और ये इनिशिएटिव को अगर जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आप कॉम्प्रिहेंसिवली फॉलो करोगे, कैन इवन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आपका जो है प्रीलिम्स की तैयारी काफी अच्छी हो जाए। So now let's look at some goods which are exceptions to law of demand. That means वो जो है law of demand follow नहीं करते. What it means is that basically what law of demand says, law of demand says that at higher prices less quantity of goods are demanded, and at lower prices more quantity of goods are demanded. Okay, so this kind of curve comes somewhere for some goods, right? But these goods do violate this thing. Okay, for instance, Webland goods. These are normally luxury goods, and in luxury goods if you see they are related to status, right? And therefore many times their price is high, and the fact that these goods are expensive gives them that their luxury tag, and if their prices come down, their demand comes down. Okay, so Veblen good, luxury good, is one type of good which violates the demand. For these goods, if their price comes down, then their demand also comes down, because the luxury status or the that thing associated with them, also goes down. Okay, second thing is necessities. So see, there are some goods which are very essential for us, which we have to buy irrespective of the price, right? And so for these goods you have to make expenditure. For instance, life saving medicines. So whether their prices increase or decrease, one has to buy these goods, whether someone is rich or poor. Each person has to buy this good. हर किसी को ये खरीदना ही होगा. Everybody has to buy these necessities, and इसीलिए they also violate the law of demand. The bare minimum amount of these necessities has to be bought irrespective of the price. That's why they violate law of demand. Next is the goods that are expected to be scarce. For instance, such goods, for example, आपने देखा होगा कि potatoes जैसे होते हैं, तो कई बार many times you must have seen that there is inflation, potatoes का price बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है because of say some maybe weather issue or something, जिसके कारण जो है potato crop जो है destroy हो गई, या potato नहीं तो कोई और food crop जो है वो destroy हो गई, तो उसके कारण इनका prices बढ़ रहा है. Now, if their prices is increasing, people know that it is going to be scarce. Then people are going to purchase more and more quantities of it and try to होल्ड इट, होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे इसकी ज्यादा क्वांटिटीज खरीदने के लिए. और इसीलिए डिस्पाइट इंक्रीजिंग प्राइसेस, इनकी जो है डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी. डिस्पाइट इंक्रीजिंग प्राइसेस देयर डिमांड विल इंक्रीज. And then next is giffen good. So it is one of the most complicated type of good and rare type of good. यहाँ पे what we see in these goods is that their demand also basically increases with the increase in price. Now अगर इन goods के बारे में देखें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये inferior good है, यानी they are consumed by people who are very poor. तो उनकी परचेजिंग पावर काफी कम होती है, पहली चीज. ठीक है. सेकेंडली, they violate law of demand. That means their quantity demanded increases with increase in the price. Now why so? Why do they violate law of demand? सबसे पहला रीजन है उसका इनकम इफेक्ट. दैट अगर इन गुड के प्राइस इंक्रीज होते हैं और ये गुड जो है पुअर पीपल कंज्यूम करते हैं, तो उनकी परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. नाउ इफ देयर परचेजिंग पावर गोज डाउन, तो फॉर इंस्टेंस से सम फूड, कोई भी फूड आइटम हम लेते हैं, तो किसी फैमिली को मे बी 10 kgs ऑफ ग्रेन्स चाहिए,
2 केजीज वो गुड क्वालिटी की ग्रेन्स लेते हैं जो थोड़ी महंगी है, और 8 केजीज वो जो है सस्ती ग्रेन लेते हैं जो अपना गिफन गुड है, लाइक कोर्स सीरियल्स, राइट, दे टेक दैट, ओके। और अगर यू नो this helps them satisfy their needs for their family, okay, but if कोर्स सीरियल का प्राइस बढ़ जाता है, राइट, सो इस केस में वो जो है वो 8 केजीज ऑफ कोर्स सीरियल नहीं खरीद पाएंगे विद सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो महंगा जो अनाज वो खरीद रहे थे, द गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन दैट दे वर परचेजिंग, वो उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं खरीदेंगे, और उसको छोड़ने के बाद उससे जो पैसे बचेंगे उससे वो जो है अपना जो है ये वाला कोर्स सीरियल ज्यादा खरीदेंगे, ताकि उनके फैमिली को जो 10 केजी अनाज है वो मिल जाए। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, कोर्स सीरियल जो हमारा गिफन गुड है, इंफीरियर गुड है, उसका प्राइस बढ़ा, उसके कारण जो फैमिली है उसकी परचेजिंग पावर कम हुई। परचेजिंग पावर कम हुई तो इसलिए वो 10 केजीज ऑफ फूड ग्रेन जो उसको चाहिए वो फिर सेम परचेजिंग पावर पे खरीद नहीं पाएगा सेम अमाउंट ऑफ। तो इसलिए वो जो महंगा फूड ग्रेन जो 2 केजी खरीद रहा था उसका कंजम्पशन वो जो है या तो जीरो कर देगा, कम कर देगा, और उससे जो पैसा बचेगा उससे वो जो है रिमेनिंग जो है कोर्स सीरियल खरीदेगा, सो दैट इट दैट पर्सन कैन फीड हिज और हर फैमिली। और एक और चीज है, ये जो गुड्स है जैसे कोर्स सीरियल है, अब देखो मैंने कहा महंगा आना, सी expensive wheat or something that is not a close substitute. Close substitute would be one which is also closely related in terms of price. तो इन गुड्स का जो है क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, तो कोई सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी नहीं होता। अगर मान लो कोर्स की जगह कोई दूसरा कोर्स सब्सटीट्यूट होता उसका, राइट, कोई दूसरा सब्सटीट्यूट होता, तो पर्सन वुड हैव स्विच टू दी अदर थिंग, राइट, पर्सन ने जो है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता, हमने जो पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, और उस पर स्विच कर जाते, बट क्योंकि नहीं है और यही जो चीज उनके पास अवेलेबल है, इट इज अगेन समथिंग जो उनको चाहिए ही, कंज्यूम करना ही अपनी जो है फैमिली को फीड करने के लिए, तो दैट्स वाई इसकी डिमांड प्राइस बढ़ने के बाद भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, दूसरे गुड्स वो कम खरीदते हैं जो महंगे वाले हैं, और वो बाकी बचे हुए पैसे से यही गुड ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपनी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वांट्स हैं, वो जो है सेटिस्फाई कर पाए। तो दीज आर गिवन गुड्स, ओके। नाउ लेट्स कम ऑन टू द आइडिया ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, टिल नाउ व्हाट वी वर डूइंग वर वी वर ऑलवेज सेइंग दैट कि एक्चुअली ऐसा होगा तो डिमांड चेंज होगा, राइट, कि डिमांड में जो है चेंज होता है, राइट, क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपका चेंज होता है, या टोटल डिमांड आपका जो है चेंज हो जाता है, ठीक है, बट इतना टू व्हाट एक्सटेंट इट विल चेंज। तो अभी तक हम बस जनरल ये बोल रहे थे, क्वालिटेटिवली बोल रहे थे कि चेंज होगा, कम या ज्यादा होगा, पर कम होगा तो कितना ज्यादा, कितना कम होगा, मतलब प्राइस चेंज होने के साथ साथ ज्यादा कम होगा, प्राइस चेंज में जितना चेंज हुआ है उससे ज्यादा कम होगा या कम चेंज होगा। तो इट मीन्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड to the change in its price, right? Or income or those other factors that we are talking about. जो हमने सारे वहां पे फैक्टर्स देखे थे आपके प्राइस के साथ, तो प्राइस का चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है, सिमिलरली इनकम के चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है, सिमिलरली रिलेटेड गुड के प्राइस चेंज होने में कितना क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है। मेनली हम यही तीनों जो है इन्हीं तीनों केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं, और बाकी दूसरे टेस्ट प्रेफरेंस में क्यों नहीं देखते, क्योंकि उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हाईली, अगर इन जनरल हम बोले किसी गुड की हाईली इलास्टिक डिमांड है, मतलब जरा से प्राइस चेंज में उसमें जो है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो इफ देयर वुड बी अ स्मॉल चेंज इन प्राइस और इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो देयर वुड बी अ लार्ज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। तो इलास्टिक गुड, हाईली इलास्टिक गुड जो ऐसा होता है जिसकी डिमांड में जो है बहुत बड़ा चेंज आता है, इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, इनकम और द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। जबकि इन इलास्टिक गुड, जैसे हम बात कर रहे थे जैसे नेसेसिटीज वगैरह हैं, तो वो इन इलास्टिक होती है नेसेसिटी, क्यों, क्योंकि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उसके प्राइस में कितना भी चेंज है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लोग खरीदेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इन केस ऑफ इन इलास्टिक गुड्स, यू नो the change in the demand is negligible, even if there is a very high change in price or income or anything, okay. So therefore we have three types of elasticity of demand, यानी जो डिमांड है वो चेंज होती है, तीन मेजर जो है, पांच छह फैक्टर्स बताए थे, बट तीन मेजर के फैक्टर्स के केस में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेते हैं। प्राइस ऑफ दैट ओन गुड, पहला इलास्टिसिटी डिमांड होता है, ओन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ दैट गुड, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, जिसमें उस गुड की डिमांड में क्या चेंज होता है, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्राइस, की जो है प्राइस में अगर चेंज हुआ उस गुड के, तो उसकी खुद की डिमांड में क्या चेंज होगा।
क्रॉस प्राइस मतलब रिलेटेड गुड, यानी सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस में चेंज होने से क्या चेंज होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज होने से क्या चेंज होता है किसी गुड के डिमांड में, वो जो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हो जाता है। एंड इनकम इलास्टिसिटी है कि इनकम में चेंज होने से किसी गुड के जो है डिमांड में क्या चेंज होता है, वो इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, now if we see talk about price elasticity of demand, so it measures responsiveness of quantity demanded to the change in the price of that good. Okay, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो सिंपल है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है देन डिमांड इज कंसिडर्ड इलास्टिक। ठीक है, तो उस केस में जो है डिमांड इलास्टिक है, मतलब दैट गुड इज रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइसेस। इट मींस दैट इसका मतलब ये हो गया दैट गुड इज रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, और अगर लेस देन 1 है देन द डिमांड इज कंसिडर्ड इनलास्टिक, दैट मींस दैट गुड इज नॉट रिस्पॉन्सिव। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिव। सो एसेंशियल गुड है, कोई नेसेसिटी है या ऐसा कोई गुड है जो एसेंशियली कंज्यूम करना ही है, प्राइस में कुछ भी हो जाए, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइसेस। और अगर पीईडी वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिट इलास्टिक। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स जो होते हैं ज्यादातर जो है वो प्राइस इलास्टिक होते हैं। ठीक है, और जो है आपके जो है पीडी 1 के जो होता है, अगर दैट इज कंसिडर्ड टू बी इनलास्टिक गुड। नॉर्मली पीडी 1 लेस देन 1 उन्हीं का होता है जो नेसेसिटीज होती है। ठीक है, जो एसेंशियल है, जो खरीदना ही खरीदना है चाहे कोई भी प्राइस हो। ठीक है, दीज काइंड्स ऑफ गुड आर नोन एज इनइलास्टिक। ठीक है, तो किन फैक्टर्स पे आपकी प्राइस इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि कितना चेंज होगा? सी दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन ऑल दी सेम फैक्टर्स जो हमने लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेशन में देखे थे, राइट? लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेशन में जो सारे फैक्टर देखे थे उसी पे डिपेंड करता है। अवेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे तो मान लो अगर नहीं है क्लोज सब्स्टिट्यूट तो इनइलास्टिक होगा कि भाई प्राइस में चेंज हो जाए, डिमांड में चेंज नहीं होगा, इट विल बी इनइलास्टिक अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। बट अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे हैं और बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो जरा सा चेंज हुआ लोग सोचेंगे मैं दूसरी चीज खरीद लेता हूँ। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी तब बहुत ज्यादा हो जाएगी, इट विल बी इलास्टिक। ठीक है, रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन दी प्राइसेस, डिमांड ऑफ दैट गुड वुड बी change in the demand of that good would be responsive to change in the price of the good. Okay, देन नेचर ऑफ कमोडिटी, जैसा मैंने आपको बताया, अगर एसेंशियल है, राइट, एसेंशियल कमोडिटी है जो मतलब ऐसी चीजें जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन या बेसिक फूड ग्रेन्स है, ये तो चाहे कोई भी प्राइस हो, ये खाना ही खाना है, आपको खाना चाहिए, बेसिक चाहिए, तो ये एसेंशियल है, इनका जो है इतना चेंज डिमांड में नहीं आता। ठीक है, so there is not that much change in the demand of essential good with respect to even if there is change in price, so they are normally inelastic. ठीक है, और कुछ गुड्स जैसे लग्जरी है, राइट, तो लग्जरी गुड्स ऐसे होते हैं कि जरा सा प्राइस में चेंज हुआ बहुत ज्यादा उसकी डिमांड में चेंज आ जाता है। जैसे आईफोन होता है, 14 आया नहीं बट 13 का प्राइस ड्रॉप होता है आईफोन का, लोग ऑल ऑफ अ सडन दे वांट टू बाय लॉट ऑफ इट। ठीक है, तो वो जो है आपका इस टाइप के गुड की जैसे कमोडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि की इट वेदर प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होता ही डिमांड प्राइस के साथ, प्राइस के चेंज में के कारण, और इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंज के कारण जो है आपकी डिमांड भी चेंज होती है काफी एक्सटेंट तक। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो मान लो आप जो है मैच बॉक्स खरीदते हो, एंड आई होप यू नो मैच बॉक्स कितने का आता है, ₹1। ठीक है, ₹1 का मैच बॉक्स आता है। अब आपकी इनकम 1,00,000 है, ये मैच बॉक्स की प्राइस ₹2 हो गई, 100% चेंज आया, तो क्या आप मैच बॉक्स खरीदना कम कर दोगे? तो अगर बहुत कम शेयर है एक्सपेंडिचर में, राइट, इफ देयर इज वेरी लेस शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो रिलेटिवली दैट प्राइस इलास्टिसिटी इज इन दैट इन इलास्टिक होता है। ठीक है, जो प्राइस में चेंज कितना भी कर लो, डिमांड में चेंज बहुत नेग्लिजिबल होता है। बट मान लो कोई ऐसी चीज है जिसका मेजर शेयर होता है, जैसे अगर हम ले पेट्रोल, और ये जो है आपकी जो है कंजम्पशन, मतलब आपकी जो इनकम का 50% होता है, या 50 नहीं, चलो 30% जो आपका कन्वेंस का कॉस्ट जो है, ₹100 कमाते हो, ₹30 पेट्रोल में लग जाता है। ऑल ऑफ अ सडन पेट्रोल ₹1 महंगा हो गया, ठीक है, या 0.5 महंगा हो गया। ठीक है, तो पहले ₹1 का, जस्ट अज्यूम इट, ठीक है, तो ये खर्चा आपका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस विल इंक्रीज सब्सटैंशियली,
राइट। जरा से प्राइस इंक्रीज से ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आप ऑब्वियसली आप पेट्रोल यूज करना ही छोड़ दो, क्या पता, राइट। यू वुड जस्ट यूज इट फॉर एसेंशियल पर्पस एंड यू विल ट्राई टू बेसिकली आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेट्रोल के केस में प्राइस इलास्टिसिटी देयर इज हाईली इलास्टिक, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाईली इलास्टिक, ठीक है। जबकि मैच बॉक्स के केस में, जो कि बहुत ही कम नेग्लिजिबल शेयर एक्सपेंडिचर में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाईली इन इलास्टिक, ठीक है। देन लेवल ऑफ प्राइस, अगेन याद रखिए, इस पे भी आपको जो है यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ प्राइस की अगर बात करें, तो अगर प्राइस बहुत ही, जैसे मैच बॉक्स है, 1 रुपए बहुत कम प्राइस है, तो उसमें 1 से 2 रुपए 100% चेंज में भी ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो लो सस्ती चीजें, बहुत जो सस्ती चीप चीजें, उसमें नहीं आता। बट जो बहुत ही महंगी चीज है, जैसे कोई कार है, तो अगर वो उसके उसका जो प्राइस है वो चेंज होता है, तो 1-2 रुपए का चेंज नहीं होता उसमें, उसमें 50-60 हजार का चेंज होगा। तो दैट इज अ बिग चेंज, ओके। बट एज अ परसेंटेज अगर आप देखोगे, 5 लाख की कार, सो देखो 5 लाख की अगर कार है, उसमें 50 हजार अगर कॉस्ट बढ़ता है, तो 10% चेंज हुआ। जबकि यहाँ पे 1 रुपए की मैच बॉक्स है, वो जो है अगर 2 रुपए की हो जाती है, 100% चेंज हुआ। बट डिमांड में यहाँ पे ना के बराबर चेंज है। डिमांड में यहाँ पे जो है आपका, अगर 50 हजार का चेंज हो गया, कई लोग जो सोच रहे होंगे गाड़ी खरीदने को, छोड़ देंगे वो, ठीक है। और लेवल ऑफ इनकम, अगर आप भाई बहुत अमीर हो, यू नो अमीर ज्यादा है होते, भाई उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना कि इतना कितनी चीज क्या महंगी है, राइट। बट अगर यू आर अ पुअर पर्सन, समवन इज अ पुअर पर्सन, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो जो पुअर लोग हैं, उनके लिए अगर वो कोई भी गुड कंज्यूम कर रहे हैं जो है, और पर्सन पुअर है, तो उसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दैट गुड विल बी हाईली इलास्टिक। बट जो रिच है, उनके लिए प्राइस, ऐसे गुड जो रिच लोग जैसे कंज्यूम करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाईली इन इलास्टिक, ठीक है। अगला आ जाते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस of change in quantity demanded to change in income, right? या better word would be change in the demand, total demand, ठीक है। तो सी देखो, कैसे इनकम चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे पहले प्राइस था, इनकम आ गया, ठीक है। और अगर वैल्यू पॉजिटिव है, तो गुड इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल गुड, ठीक है। यानी प्राइस में चेंज हुआ, इनकम बढ़ी और डिमांड भी बढ़ी, इनकम घटी और डिमांड भी घटी, तो वाईडी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी के केस में वैल्यू नेगेटिव आती है, बट यहाँ पे हम मोस्टली एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी। तो अगर पॉजिटिव आएगी तो नॉर्मल गुड है, नेगेटिव आई यानी मतलब ऊपर जो है क्वांटिटी डिमांडेड जो है बढ़ गई, यानी पॉजिटिव है, तो इनकम जो है कम हुई, तो इंफीरियर गुड, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एंड अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन गुड इज कंसिडर्ड टू बी लग्जरी गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अगला हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इट मींस responsiveness of quantity demanded of one good to changes in the price of another good। ये another good क्या हो सकता है? It could be a substitute और it could be a complementary good। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये substitute या complementary good है? By looking at the value of the cross price elasticity of demand। तो देखो इसका फॉर्मूला सिंपल है, change in quantity demanded of good A to percentage change in price of good B, ठीक है। कि कितना चेंज क्वांटिटी में हुआ है डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ गुड भी। तो इसमें अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू, इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव, या जो ये जो रेशियो है एक्सीडी, अगर ये 0 से ज्यादा आता है, पॉजिटिव आता है, इट मींस 2 गुड्स आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूट, 2 गुड जो है उनको सब्स्टिट्यूट माना जाता है। फॉर इंस्टेंस वी कैन टेक द केस ऑफ कोका कोला एंड पेप्सी। तो दोनों अगर 10 रुपए के हैं, ठीक है, तो अभी तो कोई वो नहीं है दोनों में कंपटीशन, बट मान लो पेप्सी इज सब्स्टिट्यूट फॉर कोकोला, तो पेप्सी का प्राइस बढ़ के हो गया 11 रुपीज, ठीक है। तो पेप्सी, द प्राइस ऑफ पेप्सी हैज इंक्रीज्ड, तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, व्हाट विल हैपन इज, जो कोको कोला की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जो है 10 रुपए में कोको कोला खरीदना प्रेफर करेंगे। तो पेप्सी जो हमारा गुड बी है, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ, तो हमारा जो गुड ए है
उसका भी प्राइस इंक्रीज हुआ, यानी दोनों पॉजिटिव में है, तो ये भी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो टू गुड्स आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूट। नाउ अगर यहाँ पे हम लें एग्जांपल ऑफ योर नो कार एंड पेट्रोल, ठीक है, तो से कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, राइट, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, राइट, तो पेट्रोल जो हमारा गुड बी है उसका अगर प्राइस इंक्रीज होता है, तो लोग क्या ज्यादा कार खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? पहले से कम खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कार खरीदना और मेंटेन करना एक एक्सपेंसिव चीज है, इसलिए वो डिमांड कम कर देंगे कार की। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेट में ये जो है नेगेटिव आएगा। इट मीन्स दे आर कंसिडर्ड टू बी कॉम्प्लीमेंट्स, और अगर जीरो है तो देन दे आर अनरिलेटेड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हियर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो ये बेसिक चीजें हैं, इतनी ही लेवल और इतनी ही डेप्थ तक आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी यूपीएससी में, तो इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है हमें, ठीक है। नाउ एक और चीज है, प्राइस इलास्टिसिटी और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, ना क्रॉस प्राइस भी नहीं बोल रहे, इनकम भी नहीं बोल रहे, हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो ऐसा देखा है कि जो गुड्स जिनका अगर डिमांड इलास्टिक है, तो if demand for the product is elastic, so decrease in price will lead to increase in total expenditure of product, and increase in price will lead to decrease in total expenditure on product, ठीक है। तो ये देखा गया है कि ऐसे होता है, राइट। नाउ इसके पीछे क्या लॉजिक है, आप खुद जो है इसको डिमांड सप्लाई कर्व जो हमने लॉ ऑफ डिमांड है, देखो उसको फॉलो करिए। किसी भी गुड का जो है एक्सपेंडिचर किसी भी गुड पे होगा, तो एक्सपेंडिचर ऑन एनी गुड इज नथिंग बट कि क्या उस गुड का प्राइस है इनटू दी क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी उसका खरीदा है, ठीक है। तो जब इलास्टिक डिमांड है, तो आप सबको पता है कि भाई अगर डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इलास्टिक, तो अगर ये बड़ा है तो ये भी घटेगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी बड़ी है डिमांड की, राइट, से प्राइस घटा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, तो मोर और लेस क्या होगा, एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज जो है डिक्रीज होगा प्राइस में, राइट। सो इज डिक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज कहीं ना कहीं टोटल एक्सपेंडिचर, क्यों, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। सो इसलिए जो रिलेशन में देखा गया है वो ये होता है कि अगर कोई गुड जो इलास्टिक है, राइट, इफ अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक, तो अ डिक्रीज इन प्राइस will lead to increase in total expenditure. Why? Because of decrease in price, quantity demanded will also increase, और इलास्टिक है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या करेगा, प्राइस डिक्रीज से ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स इलास्टिक, राइट। सो दैट्स व्हाई टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, जबकि इंक्रीज होगा अगर प्राइस में, तो लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज प्लस इट इज एन इलास्टिक गुड, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज होगा दैट वुड बी मच मोर देन द इंक्रीज इन द प्राइस। तो इसीलिए जो है आपका इंक्रीज इन प्राइस से जो है टोटल एक्सपेंडिचर में जो देयर विल बी अ डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक, सिंपल है, लॉजिक आप लगाओ, दिस इज व्हाट इकोनॉमी इज ऑल अबाउट, इट्स कॉन्सेप्चुअल। तो बेसिकली किसी गुड पे एक्सपेंडिचर, इफ यू टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर ऑन एनी गुड, लेट्स से ई इज नथिंग बट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ दैट गुड, ठीक है। अब नाउ से देयर इज अ गुड जिसकी डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड होने का मतलब ये है कि अगर उस गुड के प्राइस में चेंज होगा 10% का, तो अज्यूम करो कि उस गुड की डिमांड में चेंज होगा 20% का, राइट। और लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है प्राइस इलास्टिसिटी में अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो प्राइस डिक्रीज हुआ, तो उस गुड का अगर मान लो प्राइस डिक्रीज हुआ किसी गुड का, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दूसरी चीज, ये इलास्टिक है, इलास्टिक है तो प्राइस डिक्रीज अगर 10% का हुआ, राइट, तो ये अगर 10% कम हुआ है, तो ये 20% जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो ओवरऑल बढ़ेगा, ठीक है। और जब उल्टा देखोगे आपकी प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी डिमांड जो डिमांडेड है कम होगी और ज्यादा अमाउंट में कम होगी विज़ावी जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आई हैव जस्ट रीआइटेटेड इट। और अगर इन इलास्टिक डिमांड होगी, तो दोनों साथ में मूव करेंगे, एक्सपेंडिचर और प्राइस जो है साथ में मूव करेंगे फॉर इन इलास्टिक गुड्स, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्राइस विल डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। याद रखना, इलास्टिक डिमांड के लिए डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द आइडिया ऑफ सप्लाई, ठीक है।
सो अब हमने डिमांड का पढ़ लिया, लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई। तो अगर सप्लाई की बात करें, ठीक है, सो इट ऑल्सो मीन समथिंग कि इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म और सेलर ऑफर्स फॉर सेल। सो ऐसा नहीं है दैट फर्म और सेलर शुड पुट इट इन मार्केट फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है। सो दैट फर्म और सेलर शुड कितना क्वांटिटी ऑफ गुड एक सेलर एक्स वाई जेड प्राइस पे सेल करना चाहिए। एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, दैट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी increases with increase in price and decreases with decrease in price। और ऐसा क्यों होता है, why? बिकॉज आप खुद सोचो, अगर किसी चीज की कमोडिटी है, मेरे पास कुछ बेचने के लिए, आपके पास कुछ बेचने के लिए है, और अगर मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा तो मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, उस चीज पे जो है पर यूनिट पे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब मेरा पर यूनिट पे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इट इज वेरी लॉजिकल, आई विल थिंक ऑफ सेलिंग मोर ऑफ इट। तो इसका अगर हम जो है सप्लाई कर बनाए तो ये प्राइस है, अगर ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है आपका इंक्रीज होगा। सो विथ इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। तो इस टाइप का कुछ अपना बनेगा सप्लाई कर्व, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा सप्लाई कर्व, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कि भाई ये सप्लाई किन चीजों पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स सप्लाई डिपेंड्स। तो पहला तो प्राइस ऑफ कमोडिटी ही हो गया, जो हमारा नथिंग बट लॉ ऑफ सप्लाई है। और देखो ये याद रखो, प्राइस ऑफ कमोडिटी से जो मूवमेंट होता है वो ये जो है इसी इसी के ऊपर ऊपर नीचे मूवमेंट होगा, या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे इसी लाइन पे, ठीक है। नाउ प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, राइट। अदर रिलेटेड गुड्स मतलब कि दूसरे जो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर दूसरे गुड्स मतलब ऐसी चीज है कि आप जैसे देयर इज एग्जांपल ऑफ फार्मर, राइट। अब फार्मर के पास एक लैंड है, उस लैंड पे फार्मर वीट ग्रो कर सकता है, या फिर उस लैंड पे फार्मर जो है वेजिटेबल्स ग्रो कर सकता है। तो फार्मर देखता है कि वेजिटेबल का प्राइस ज्यादा है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, राइट। तो प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो फार्मर विल ग्रो more of supply, grow more of wheat on his land and supply, sorry, more of vegetable on his land and supply more of vegetable। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे ग्रो करके ज्यादा है, राइट। तो रिलेटेड गुड में मतलब सब्सटीट्यूट गुड का जो है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सब्सटीट्यूट गुड अगर प्राइस बढ़ता है तो वो ज्यादा सप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि सप्लाई कर्व को इस केस में जो है ये जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता है। मतलब एक सेम प्राइस पे अब जो है अमाउंट ऑफ सप्लाई, यानी पहले इस प्राइस पे इतना कर रहा था, तो अब इस प्राइस पे जो है अमाउंट ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो हर एक प्राइस लेवल पे सप्लाई टोटली कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे इतनी हो जाएगी, यहाँ पे इस प्राइस लेवल पे जो है इतना हो जाएगा कम। तो आप देखोगे हर प्राइस लेवल पे जो है क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट और चेंज इन दी सप्लाई। और सिमिलरली जो पीछे बोलते थे चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो सेम ये केसेस रिलेटेड गुड्स का, ठीक है। तो रिलेटेड में सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, ठीक है। तो दैट इज देयर। देन प्राइस ऑफ इनपुट्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आप कोई पर्सन जो है कुछ भी गुड मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई कंपनी होती है, तो व्हेन इट मैन्युफैक्चर्स अ गुड, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, राइट। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे लेबर को पैसा देना है, लैंड रेंट पे लेनी है, फैक्ट्री जहाँ पे लगाई हुई है उसका रेंट देना है, राइट। जो है दूसरा कुछ प्रॉफिट जो एंटरप्रेनर अपना निकालना चाहेगा, ये सब देखेगा। तो अगर आपके जो इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, लेबर यूज कर रहे हो, उसका अगर प्राइस ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स इंक्रीज, then what happens if price of input increase? Your cost of production, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, राइट। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है मतलब प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। और अगर प्रॉफिट कम होता है तो ऑब्वियसली सेलर सोचेगा कम प्रॉफिट है इसमें, तो जो है दे विल रिड्यूस द इट्स सप्लाई। तो इससे जो है सेलर इसका जो है, कई लोग मतलब क्या होगा, कई लोग सोचेंगे इसमें प्रॉफिट ही नहीं है, वो अपना फैक्ट्री बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, राइट। सो दे विल रिड्यूस इट्स सप्लाई, ठीक है। टेक्नोलॉजी से मान लो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे आप सेम अमाउंट ऑफ इनपुट्स के साथ ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी सेम अमाउंट, तो फिर आप ज्यादा सप्लाई करोगे, राइट।
So technology helps like this. Okay, it could basically reduce your cost of production, right? Technology will also, what it does, it will basically reduce cost of, okay, technology will reduce your cost of production. Okay, expectations. तो अगर जैसे फार्मर का केस हम लेते हैं, तो फार्मर काफी कुछ जो अपनी फसल बोते हैं, जो भी करते हैं, दे डू इट ऑन एक्सपेक्टेशन. तो कई बार ये होता है ना कि वीट का फार्मर्स देखते हैं कि इस सीजन में जो है प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? तो वीट में बड़ा फायदा है ग्रो करने में, राइट? तो वो सोचते हैं अगले सीजन में भी होगा, तो सारे फार्मर्स उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे बहुत ज्यादा वीट सप्लाई कर देते हैं मार्केट में, और अगले सीजन में प्राइस जो है फिर डाउन हो जाता है. ठीक है, तो जैसे ये हो जाए एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. एंड टैक्सेशन, तो किसी चीज पे अगर गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्स लगाती है तो उसकी सप्लाई सेलर्स कम कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो जाता है. यहाँ पे टैक्सेशन कम है, दैट्स वाई गवर्नमेंट यही तो करती है कि जो चीज का सप्लाई गवर्नमेंट को मार्केट में बढ़ाना होता है उसको इंसेंटिवाइज करती है, सब्सिडीज देती है. जिसका कम करना होता है सप्लाई, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा. ठीक है, दीज आर दी की डिटरमिनेंट. और ये जो सारे डिटरमिनेंट्स हैं, ये पूरा का पूरा जो आपका सप्लाई कर्व है उसको शिफ्ट करता है. these all these from price of related goods to taxation policy, यहां से लेके ये सारे जो है पूरे सप्लाई कर्व को शिफ्ट करते हैं. जबकि प्राइस ऑफ कमोडिटी, इट लीड्स टू मूवमेंट along the supply curve, याद रखें. okay, it leads to movement along the supply curve. ठीक है, तो दीज आर डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. और जैसा हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल सप्लाई होता है, तो वैसे ही मार्केट सप्लाई होता है. कोई भी एक गुड है, मान लो कोका कोला पेप्सी है, सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को एड अप करके हमें मार्केट, सॉरी, सारे जो फार्म्स है, मान लो कोल्ड ड्रिंक अगर हम ले लें, तो सारे जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले हैं उन सबका जो है सप्लाई को अगर एड अप कर लेंगे, दैट गिव्स अस मार्केट सप्लाई बाय समिंग अप द सप्लाई ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फर्म्स इन द मार्केट. ठीक है, नाउ जैसे डिमांड की इलास्टिसिटी होती है, सप्लाई की भी इलास्टिसिटी होती है. सप्लाई भी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन दीज फैक्टर्स, और कितने एक्सटेंट तक चेंज होती है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव, सो सेम चीज है. तो यहाँ पे इलास्टिक होगी अगर इफ देयर इज इफ समथिंग लाइक, ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो नॉन एसेंशियल या लग्जरी होती हैं, दे आर इलास्टिक. एसेंशियल चीजें अगेन उनकी सप्लाई करनी ही करनी होती है, तो दे आर नॉट इनलास्टिक. ठीक है, इट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ कमोडिटी की लग्जरी है या एसेंशियल है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट, अगर हाई कॉस्ट है तो ऑब्वियसली ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं, मतलब फिर इन दैट केस जो है सप्लाई जो है इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा. एंड टाइम पीरियड, यस, तो बेसिकली टाइम पीरियड का ये है कि अगर ज्यादा लंबा टाइम पीरियड मिलता है तो उसमें जो है सप्लाई जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, इलास्टिक है. तो शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है कि फर्म जो है अपनी जो है प्रोडक्शन को जो है एडजस्ट नहीं कर पाता, तो इंक्रीज सप्लाई. तो शॉर्ट टाइम पीरियड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनलास्टिक, जबकि ज्यादा टाइम पीरियड में इट बिकम्स इलास्टिक. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी यही है, आप इसी लॉजिक से लगा के देखो, सोचो और बताओ कमेंट्स में. ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, टेल मी इन कमेंट्स, वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर. फिर अब आ जाता है, अब हमने दोनों चीजें पढ़ ली, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, और कैसे ये प्राइस के अकॉर्डिंगली मूव करते हैं और कैसे चेंज होती है. और क्योंकि ये प्राइस से मूव करते हैं, तो देखो पहली चीज होती है कि मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब इट इज अ सिचुएशन जब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. यानी अगर हम ग्राफ बनाएं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, ये, तो ये आपका डिमांड का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे. आपका सप्लाई का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे. तो ये जो है मान लो प्राइस P1 है, तो यहाँ पे जो है ये क्वांटिटी QD इक्वल टू QS इक्वल टू से समथिंग E1. तो ये जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. अब होता क्या है कि कई बार कई चीजें, एक्सटर्नल फैक्टर्स XYZ कुछ भी होते हैं, या प्राइस में जिसके कारण चेंजेस आते हैं, जिसके कारण जो है प्राइस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, राइट. प्राइस ऊपर नीचे होता है. ठीक है, तो ये जब प्राइस ऊपर नीचे होता है, सो इट इज सेड दैट देयर इज एन इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट. ये एडम स्मिथ ने कहा था
who is the father of economics, that there is an invisible hand of the market which automatically corrects any form of distortion. ठीक है, तो मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म या इनविजिबल हैंड, तीनों एक चीज है, इसको अलग, एक ही चीज को तीन तरीके से, इट इज नथिंग बट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ द मार्केट, जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई जो ऑपरेट करते हैं, through which equilibrium is determined and maintained in market on the basis of demand and supply. तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, जिसके थ्रू जो है आपका इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन करा रखा होता है, दैट इज योर लॉ ऑफ दैट मार्केट मैकेनिज्म और प्राइस मैकेनिज्म. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि कैसे ये ऑपरेट करता है. तो मान लो, लेट्स अज्यूम फॉर एनी रीजन XYZ, this price P1 should be the equilibrium price, but what is happening is, this is your demand curve D, this is your supply curve S, this price, this is quantity demanded and quantity supplied, this side. ठीक है, तो अब क्या है, there is excess demand, तो डिमांड जो है ज्यादा है, एक्सेस है. ठीक है, तो एक्सेस डिमांड कब होगा, जब प्राइस इज बिलो, that price is say PL, so price is below the equilibrium price. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये डिमांड जो है ये है, डिमांड ये है, सप्लाई ये है, तो सप्लाई कम है डिमांड से, देयर इज, ये क्या हो गई हमारी एक्सेस डिमांड. ठीक है, दिस इज आवर एक्सेस डिमांड. अब इस सिचुएशन में होगा क्या, तो इस सिचुएशन में ये होगा, एक्सेस डिमांड, जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. प्राइस अब क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगा, अब भाई एक्सेस डिमांड है, तो कुछ जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो ऐसे होंगे कि वो सोचेंगे कि भाई ये 10 रुपए का कोई नहीं, मेरी जरूरत है, मैं इसको 11 रुपए में खरीद लूं. कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा 12 रुपए में खरीद लूं. तो होगा क्या, सबसे पहली चीज क्या होगी, ये प्राइस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा. क्यों, बिकॉज बायर्स ट्राई टू आउट कम्पीट ईच अदर. बायर्स एक दूसरे से, सेलर्स नहीं कॉम्पीट करेंगे, बायर्स कॉम्पीट करेंगे. लोग अपनी डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा प्राइस देके वो गुड खरीदने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहला जो फोर्स है जो मार्केट मैकेनिज्म का, वो ये है, इसके थ्रू जो है प्राइस ऊपर जाएगा. राइट, नाउ जैसे जैसे प्राइस राइज होता है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, अब क्या होगा कि अगर प्राइस ऊपर गया, तो कुछ लोग अब जो होंगे ऐसे होंगे कि भाई, जो सोचेंगे यार ये तो बहुत महंगा हो गया हमारे लिए, हम नहीं खरीदते. तो क्या होगा, डिमांड स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग. व्हाई, बिकॉज सम पीपल ड्रॉप आउट. क्यों, ये सोच के कि ये हमारे लिए अब तो बहुत महंगा हो गया, उनकी या तो इतनी इनकम नहीं होगी, पुअर नहीं होंगे, तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे, डिमांड से हट जाएंगे. ठीक है, तो डिमांड जो है आपकी क्या होगी, कम होगी. प्राइस राइज होने से डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड कम होती है. सो दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड. और लॉ ऑफ डिमांड होगी तो ये जो है यहाँ पे कम होना, मतलब इस साइड पे मूवमेंट होगा डिमांड कर्व पे. ठीक है, तो मूवमेंट विल बी ऑन दिस साइड. ठीक है, तो ये जो है, तो और सप्लाई क्या होगी, स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग. क्यों, क्योंकि लोग देखेंगे कि भाई लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं, राइट, प्रॉफिट है इसमें, तो सप्लाई आपकी इधर मूव करने लग जाएगी. राइट, सप्लाई विल स्टार्ट मूविंग हियर. तो अब आप देखो मार्केट मैकेनिज्म, सी दी प्राइस मैकेनिज्म, इनविजिबल हैंड और मार्केट मैकेनिज्म. ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड हुई, कोई भी केस के कारण, किसी भी केस के कारण प्राइस कम हुआ, ऑटोमेटिकली तीन फोर्सेस हो गई, प्राइस बढ़ेगा, ये होगा, ये होगा, तीनों कहाँ ले जा रही है उसे, टू दी इक्विलिब्रियम. राइट, तो ऑल दीज मूवमेंट्स, ये प्राइस में इंक्रीज, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन और सप्लाई का एक्सपेंशन, तीन क्या मूवमेंट्स हैं प्राइस के, प्राइस में इंक्रीज, राइट, मूवमेंट ऑफ प्राइस, और डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन, सो प्राइस इंक्रीज, डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन और सप्लाई का इंक्रीज will result in equilibrium being restored. ठीक है, through though at a higher price than before. Okay? So that way equilibrium जो है, ये प्राइस जो है इससे मूव करके यहाँ पे इक्विलिब्रियम. ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन, ये सिचुएशन. सिमिलरली सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई क्या होगा, मान लो हमारा स्टार्टिंग प्राइस, अब हायर प्राइस कैसे होगा, यहाँ पे ये जो प्राइस था इससे ऊपर आ गया. ठीक है, so P1 जो है हायर प्राइस. So now ideally what is this, here हमारा जो है इक्विलिब्रियम है, राइट. अब क्या है, ये अपना डिमांड कर्व है, ये QD QS, और यहाँ पे जो है अपना जो है प्राइस. अब क्या है,
प्राइस इज हाई, ठीक है, तो प्राइस इज हाई अबाउ द इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगी अपनी सप्लाई जो है, सप्लाई करवे, तो देर इज एक्सेस सप्लाई, जब एक्सेस सप्लाई है तो क्या होगा, प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग। व्हाई विल दिस प्राइस स्टार्ट फॉलिंग, क्यों, क्योंकि सप्लायर्स ट्राई टू कॉम्पीट विथ ईच अदर, अब सप्लायर्स एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, वहां बायर्स करते हैं, यहाँ सप्लायर्स एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, अपनी चीजें को जो है कम दाम में बेचना शुरू कर देंगे, राइट, जब उन्हें देखेगा कि एक्सेस सप्लाई है, ताकि वो चाहते हैं कि अपनी उनकी चीजें बिकें, तो वो सोचेंगे चलो प्रॉफिट ना भी हो, कम दाम करके किसी तरह बेच दो इसको, ठीक है, तो एक तो इस पे फोर्स हो। अब जैसे प्राइस नीचे जाएगा, कुछ लोग जो पहले नहीं खरीदने वाले थे, राइट, फॉल इन प्राइस, तो डिमांड स्टार्ट्स एक्सपांडिंग, क्योंकि जो पहले नहीं खरीदने वाले थे वो अब सोचेंगे खरीदने का, जबकि कुछ सप्लायर सोचेंगे कि यार इसमें फायदा नहीं है, बस जो भी है निकाल के बेच के खत्म करो, अपनी जो है प्रोडक्शन इसका बंद करते हैं, ठीक है, सो डिमांड स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग, तो डिमांड एक्सपैंड होता है ऐसे इस डायरेक्शन में, और सप्लाई जो है इस डायरेक्ट यहाँ इस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए इधर आता है, और ऑल दिस मूवमेंट्स ऑफ प्राइस डिमांड सप्लाई रिजल्ट इन इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड एट अ लोअर प्राइस देन बिफोर, ये जो है लोअर प्राइस जो देन बिफोर, इस पे जो है आपका इक्विलिब्रियम आ गया, पीएच से कम प्राइस पे हमारा इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नो दिस मार्केट मैकेनिज्म वर्क्स, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, जैसे डिमांड और सप्लाई में शिफ्ट होते हैं, सी ओन कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंजेस के कारण मूवमेंट होता है कर्व के अराउंड, वो हमने यहाँ पे देख लिया, बट दूसरी चीज बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसके कारण क्या होता है, शिफ्ट होता है, सो देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व, और इस शिफ्ट के कारण मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू नाउ लुक। सो जो बचे हुए दूसरे फैक्टर्स है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उससे सप्लाई पे भी होता है, ये भी होता है, टैक्सेशन, राइट, आपका इनकम, इन सब से सप्लाई पे इम्पैक्ट होता है, राइट, सॉरी डिमांड पे इम्पैक्ट होता है और सप्लाई पे भी इम्पैक्ट होता है, तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं डिमांड शिफ्ट। अब आप सबको पता होना चाहिए डिमांड शिफ्ट क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट, इनकम, तो किस चीज के किन चीजों के कारण होता है डिमांड शिफ्ट, डिमांड शिफ्ट होता है इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, रिलेटेड गुड्स, राइट, इनकम, राइट, टेस्ट प्रेफरेंस, राइट, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर, राइट, एटसेट्रा, ठीक है, इनके कारण डिमांड शिफ्ट। डिमांड शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो लेट्स अज्यूम ये आपका जो है, लेट्स अज्यूम ये जो है आपका प्राइस पी एक्सिस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, हमारा कर्व ऐसे होता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि डिमांड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो से आपके जो है सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जो है कम हो गया, तो देर इज डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, राइट, तो जो ये गुड है उसका है, उसके सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो गया, तो उससे आप बताइए डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन डिमांड, ये कर्व राइट शिफ्ट करेगा या लेफ्ट शिफ्ट करेगा, दिस कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, क्योंकि क्या होगा लेफ्टवर्ड, क्यों होगा शिफ्ट लेफ्टवर्ड, इसलिए शिफ्ट होगा, से मान लो ये वाला प्राइस लेते हैं पी एक्स, तो इस प्राइस पे जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस कम हुआ है, तो मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करेंगे टू परचेज द सब्स्टिट्यूट गुड, नॉट दिस गुड, ओके, तो एज ए रिजल्ट ये पूरा जो है इधर शिफ्ट होगा। सिमिलरली मान लो इनकम, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इनकम, मान लो इनकम जो है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, पर्सन की इनकम की अगर बात करें हम, इफ वी टॉक अबाउट इनकम, जो हम मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं, इनकम इंक्रीज हो गई, तो इन जनरल ये डिमांड कर्व है, पूरा का पूरा कर्व जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी जो है इस प्राइस लेवल पे पहले इतना गुड ले रहे थे, बट इनकम इंक्रीज होने के बाद लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड देंगे, ठीक है, तो दिस इज नोन एज डिमांड शिफ्ट। नाउ लेट्स सी कि भाई ये डिमांड शिफ्ट होने से मार्केट के जो इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो लेट्स अगेन ड्रॉ दिस, लेट्स क्लियर ऑल मार्किंग्स, so let's draw our first equilibrium, price
and this is quantity demanded / quantity supplied, right? This is our demand curve for a good. This is the supply curve for a good. This is the equilibrium price, right? This is the equilibrium price. Now what happens? Let's take कि income increase हो गई, ठीक है? इनकम इंक्रीज हो गई तो ये पूरा का पूरा ग्राफ किधर, इस साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है? इट विल शिफ्ट ऑन दिस साइड. तो अब क्या रहा, बाकी रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, ठीक है, क्योंकि हमने ये अजम्पशन लिया है, बाकी दूसरी चीज चेंज नहीं हुई. तो अब आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये पी एन हो गया, ठीक है? और इस पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई यहाँ पे, ठीक है? दूसरा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो शिफ्ट में जो है बढ़ गया. तो जब डिमांड शिफ्ट होती है आपकी राइटवर्ड्स तो आपका या जो है ओवरऑल चेंज इन डिमांड जो है बढ़ता है. राइटवर्ड शिफ्ट मतलब पॉजिटिव चेंज इन डिमांड होता है या डिमांड ओवरऑल बढ़ती है तो उससे जो है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है? और मान लो अगर कम होती, यहाँ पे जाते हैं हम अगर इसको लेके डिमांड कर्व को पीछे, तो पीछे लेके जाते तो आप देख सकते हो ये जो है कम हो जाता, हियर इट वुड हैव फॉलन. तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो नीचे चले जाता, ठीक है? सो दिस इज हाउ डिमांड शिफ्ट हैपेंस, ठीक है? सो इन डिमांड शिफ्ट यू कैन से if demand if the change in demand is there, if there is increase in demand, right, due to factors like income, related goods and all of a good, then what happens is then the equilibrium price increases, right? पॉजिटिव चेंज के लिए. और अगर डिक्रीज हो जाती है डिमांड तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई शिफ्ट. अब ये सेम केस हम लेते हैं. दिस इज योर प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? दिस इज योर PE means equilibrium price, QE means equilibrium quantity demanded at equilibrium. तो से हमारा जो ये डिमांड कर्व है ये सप्लाई कर्व, ठीक है? हियर दीज आर आवर डिमांड कर्व. So this is demand, let's say DN, this is demand D, whatever S you could say. So here PS, okay? You could say like this, okay? So what happens is, say supply, if supply increases, supply will increase when new technology comes up, reduces cost of production. So supply, the amount of supply increase, right? So supply increases. So this was S, now this become S dash, right? So see what happens on your equilibrium. So when there is positive shift in supply, or when there is a shift in supply curve which indicates rightward shift, which indicates basically increase in supply because of any of the factors that we discussed. So what happens? See, QE dash, quantity supplied is increased, but the price, that equilibrium price, right, PE dash, that has decreased, right? So equilibrium price has decreased in case of increase in the supply, right? अगर सप्लाई शिफ्ट होता है या सप्लाई में इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कम हो जाता है. इनफैक्ट दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. जैसे स्मार्टफोन्स लो, अगर आज की डेट में आपको स्मार्टफोन 5-6 हजार में भी मिल जा रहा है कंपेयर टू 10 years बैक जब ऐसा पॉसिबल नहीं था, दिस इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के कारण इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है, इससे बहुत सारे लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका कॉस्ट बहुत कम हो गया है. इक्विलिब्रियम प्राइस पे आपको जो है सस्ते में ये फोन्स मिल पा रहे हैं. दिस इज वन एग्जांपल. ओके, नाउ दिस इज सप्लाई शिफ्ट. ओके, अगर आपका सप्लाई जो है, मान लो दिस इज P and this is QD / QS. So this is QD QS. So this is your equilibrium, right? And this is your demand curve, this is your supply curve. Now say something happens like जो raw materials हम use कर रहे हैं किसी चीज को produce करने में, there is a shortage of raw materials, और raw materials का cost बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है? सप्लाई का शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, सप्लाई कम हो जाएगी. सप्लाई कम हो जाना मतलब
लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम नया वाला है, प्राइस जो इक्विलिब्रियम का नया प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है और इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये सब एक्सरसाइज करने का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आगे जाके हम ADAS मॉडल पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड उसमें भी सिमिलर टाइप का एनालिसिस है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड हो गई, मार्केट डिमांड हो गई, राइट। मार्केट डिमांड एक गुड के लिए सब लोगों की डिमांड को ऐड करके मार्केट डिमांड हो गई, एक गुड के लिए सबके सप्लाई को ऐड करके मार्केट सप्लाई हो गई। एग्रीगेट डिमांड आगे पढ़ोगे, बेसिकली सारे गुड्स की डिमांड, सारे लोगों की सारे गुड्स की डिमांड को ऐड कर दो, वो एग्रीगेट डिमांड। सारे फर्म्स की, सारे बिजनेसेस की सारे गुड्स की सप्लाई को ऐड कर दो, वो एग्रीगेट सप्लाई। और उसका भी सिमिलर ग्राफिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, तो ये सप्लाई शिफ्ट बता दिया आपको मैंने, और मैंने आपको जो है डिमांड शिफ्ट बता दिया। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप ADAS एनालिसिस कर पाओगे और उसी के बेसिस पे आप जो है नेशनल इनकम, जो आपका GDP होता है, राइट, GDP नेशनल इनकम कहाँ पे कैसे होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्राइस ज्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा, वहां पे देखो क्या होता है उस ग्राफ में, ये जनरल प्राइस लेवल हो जाता है, ये ADAS हो जाता है और वो जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो ये आगे करेंगे हम, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमारा ADAS होगा, उससे हमें नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन वगैरह जो है कि कैसे GDP बढ़ता है घटता है और इन्फ्लेशन किस चीजों से बढ़ती घटती है वो पता चलेगा। ठीक है, नाउ ओवरऑल हमने देखा, चलो मार्केट के बारे में, मार्केट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, उसके फायदों के बारे में पढ़ा, राइट, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स। देयर आर सम ड्रॉबैक्स। व्हाट आर दीज ड्रॉबैक्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म या लिमिटेशंस? सबसे पहली चीज है दैट मार्केट, एंड अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको इसके ऊपर MCQ बना के दे सकते हैं। तो फर्स्ट इज मार्केट कैन नॉट इंश्योर सोशल जस्टिस। ठीक है, लाइक रिडक्शन इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज, इन चीजों में मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म क्या, डिमांड और सप्लाई। डिमांड आप याद करो क्या है, डिमांड इज समथिंग दैट इज वांट बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, बट अब पुअर पर्सन है कोई, उसकी वांट है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो मार्केट उसको केटर नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट उसकी डिमांड को कंसिडर ही नहीं करेगा, राइट। तो कैन फिल द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड इज वन विच इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, बट नॉट द गैप बिटवीन नीड, विच इज अगेन समथिंग समबडी नीड्स, किसी के पास होगा परचेजिंग पावर, किसी के पास नहीं होगा, राइट। so is not backed by, does not fill the gap of need and supply। ठीक है, now markets cannot resolve macroeconomic problems। ठीक है, बहुत सारी macroeconomic problems होती हैं that cannot be resolved by markets, like long term growth, conservation of environment। हमने ये सबसे बड़ी चीज देखी है कि मार्केट्स के बेसिस पे अगर रिलाई करते हैं तो इन्वायरमेंटल जो है डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, लोग पुअर हैं, पॉवर्टी एलिवेशन, प्राइस स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा आप एग्रीकल्चर में देखते हो, टोमेटो, ऑनियंस, इनके प्राइसेस एक टाइम पे ऐसे हो जाते हैं प्राइसेस कि भाई ये फेंकने पड़ते हैं टोमेटो ऑनियंस, इतना ज्यादा सप्लाई हो जाता है, और एक टाइम पे इतना ज्यादा शॉर्टेज हो जाता है सप्लाई का, और डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट फेलियर ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। So market cater only to short-term needs of well-off sections in relatively developed areas, and markets fail to allocate resources optimally in presence of externalities। ठीक है, and markets operate optimally under competitive conditions। So मार्केट को अगर अच्छे से ऑपरेट करना होगा तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव कंडीशंस चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के थ्रू ही मेंटेन की जा सकती है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करे तो आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी मोनोपोलीज बन सकती है। इनफैक्ट टेक कंपनीज में आप देख रहे हो, ठीक है, मोनोपोलीज बन रही हैं। ठीक है, ऑल्सो मार्केट कैन प्रमोट अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ रिसोर्स कंजम्पशन, जो हमने फ्यूल्स के केस में देखा है, कोल्स वगैरह ये जो है यूज होते हैं। सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ सेकेंड। तो दीज आर सम बेसिक फेलियर्स ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, अब अगर एप्लीकेशन ऑफ ये एनालिसिस देखें, काफी कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्हाई प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर सो वर्टाइल, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। जो खाना चाहिए लोगों को, फूड सिक्योरिटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है अमाउंट ऑफ फूड के लिए, डिमांड इनइलास्टिक है।
बट सप्लाई जो है कभी एक्सेस हो जाती है और कभी जो है डेफिसिट हो जाती है। डेफिसिट कैसे? मान लो बहुत जो है बारिश ड्रॉट आ गया तो सप्लाई नहीं होगी, तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कभी अच्छी खासी बारिश आए, सब कुछ आया और लोगों का एक्सेस बम्पर क्रॉप हो गई, तो बम्पर क्रॉप होने पे भी यू नो बम्पर क्रॉप अगर हो गई, देयर इज मोर सप्लाई देन डिमांड, तो आपने देखा क्या होता है, प्राइस फॉल डाउन करते हैं। ठीक है, तो उस केस में लोग सस्ते में खरीदेंगे उसको। तो दिस ऑल्सो लीड्स टू पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, कि अगर फार्मर्स ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर लेते हैं उसके बाद भी वो लोग पुअर रहते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। और इसीलिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए जो आगे हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए होती है इन फॉर्म ऑफ व्हाट? एमएसपी। और यही चीज क्या होती है? एमएसपी इज नथिंग बट प्राइस फ्लोर। दिस प्राइस फ्लोर इज नथिंग बट टू प्रोटेक्ट दी फार्मर्स। ठीक है, प्राइस फ्लोर्स क्या है? टू प्रोटेक्ट। अगर मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दिया तो वो तो बहुत लो प्राइस मिलेगा फार्मर्स को, इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एमएसपी दे देते हैं। एमएसपी क्या होता है कि मार्केट की देखो एक मिनिमम प्राइस होता है, और अगर इससे कम प्राइस आपको मार्केट में इससे ज्यादा मिल रहा है आप मार्केट में बेच दो, बट इससे कम अगर मार्केट में कम मिल रहा है तो आप यहाँ पे बेच दो। ठीक है, सिमिलरली प्राइस सीलिंग होती है, तो कुछ गुड्स ऑब्वियसली हमने देखा है होर्डिंग करते हैं लोग, ये सब करते हैं, तो अगर प्राइस सीलिंग नहीं लगाए तो कुछ गुड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो पुअर पीपल उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उनपे जो है प्राइस सीलिंग लगाई जाती है। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू होती है। तो प्राइस सीलिंग का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ब्लैक मार्केटिंग जो है लोग करने लगते हैं। राइट, फॉर इंस्टेंस अगर ग्राफिकली देखना हो आपको, तो ये जो है इक्विलिब्रियम प्राइस है। राइट, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है किसी गुड का। ठीक है, तो अब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट के ऊपर छोड़ा जाएगा बहुत ज्यादा हाई रहेगा, राइट, दे में कार्टलाइज, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्राइस सीलिंग लगा देती है। तो प्राइस सीलिंग तो लगा दी, अब लोगों को इसी प्राइस पे मिलेगा, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है? ऑफ एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड के केस में लोग क्या है, ज्यादा प्राइस देने को तैयार होते हैं जो रिक्वायर्ड है, तो उस केस में ब्लैक मार्केटिंग शुरू। और प्राइस फ्लोर सिमिलरली क्या होगा कि ये जो है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है? एक्सेस सप्लाई। ये हमने एमएसपी के केस में आप पढ़ोगे अभी, आई विल टेल यू कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि देयर इज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, और वो जो है एक्सेस गवर्नमेंट को एमएसपी पे प्रोक्योर करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट के बफर स्टॉक में बहुत सारे फूड क्रॉप्स पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। ठीक है, so this is the problem. Okay, now the last aspect that we are going to cover today is types of market, relatively less important, but फिर भी for sake of completion we will cover it completely. So there are different types of market on basis of number of firms. See, अगर बहुत ज्यादा फर्म्स हैं प्रोडक्शन के लिए तो कोई इंडिविजुअल फर्म प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर सकती, और अगर एक दो फर्म्स ही है तो दे हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस। ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, अगर आसान है एंट्री एग्जिट करना, देन अगेन देर इज लेस कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म और प्राइसेस, बट अगर डिफिकल्ट है तो एग्जिस्टिंग फर्म्स का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। एंड डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो जो फर्म जो प्रोडक्ट बेच रही है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है। अगर एकदम यूनिक प्रोडक्ट है, जो जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, जैसे आज के डेट में एआई के आप पढ़ रहे हो, चैट जीपीटी वगैरह, तो अगर चैट जीपीटी जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, राइट, तो उस केस में वो लोग जो प्राइस चाहे उसका सेट कर सकते हैं, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। राइट, तो उनका कंट्रोल जो है प्राइसिंग डिसीजंस पे और मार्केट पे बहुत रहता है। बट मान लो इसी की तरह 10 और आ गए, गूगल का भी आ गया, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का भी आ गया, टेस्ला ने भी निकाल दिया, सब निकाल रहे हैं सब, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन, तो प्रोडक्ट में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं रहा, तो इस केस में इनके पास जो है फर्म के पास प्राइसिंग डिसीजन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, तो अगर यूनिक गुड्स है तो फर्म एक्सरसाइजेस ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्राइसिंग, और अगर गुड्स आर होमोजेनस, मतलब सिमिलर टाइप के गुड्स बहुत सारे फर्म्स ऑफर कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल फर्म का कंट्रोल ज्यादा नहीं रहता प्राइसिंग पे। और इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे आप जो है मार्केट स्ट्रक्चर को परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट में डिवाइड कर सकते हो। परफेक्ट मार्केट देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली आती है। और इसमें फर्दर अगर डिग्री ऑफ कंपटीशन के बेसिस में देखो, डिग्री ऑफ कंपटीशन डिपेंड्स ऑन कंट्रोल ऑफ प्राइस, और कंट्रोल ऑफ प्राइस डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स। ठीक है,
So degree of competition depends on control of price and control of price depends on these things. तो अगर देखें यहाँ पे it's maximum और यहाँ पे it's, तो इस तरीके से आपका डिग्री ऑफ कंपटीशन वेरी कर. नाउ लेट्स वन बाय वन सी मेजर टाइप्स ऑफ मार्केट. तो परफेक्ट कंपटीशन मतलब बहुत सारे बायर्स और सेलर्स है या फर्म से जो बेच रहे हैं, सो कोई भी प्राइस पे कंट्रोल नहीं करता. प्रोडक्ट आर होमोजीनस मतलब सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट है, तो आप एक फर्म का खरीदो दूसरे का खरीदो, कोई यूनिकनेस नहीं है, तो इसलिए कोई फर्म, अगेन नो फर्म हैज अ कंट्रोल ओवर प्राइस. फर्म इज अ प्राइस टेकर, यानी फर्म को जो प्राइस मार्केट मैकेनिज्म सेट करता है उसके अकॉर्डिंग ही वही प्राइस पे फर्म को बेचना पड़ेगा. फर्म वुड हैव टू सेल इट्स गुड at the price set by the market mechanism or the industry. Free entry exit is there, so units, new firms can come in, and firms, if there is कि profit नहीं हो रहा तो firms can go out of business also. ठीक है, that happens in perfect competition. There is perfect knowledge among the buyers and sellers regarding what they want, what quality of good is provided, and perfect mobility of goods एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता परफेक्ट मार्केट में कि ये गुड जो है इन्हीं को मिलेगा, इसी रीजन में होगा, दूसरे रीजन में नहीं होगा. देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी. ठीक है, दिस इज परफेक्ट कंपटीशन. मोनोपोली, यू अंडरस्टैंड, सिंगल सेलर एक्सरसाइजिंग टोटल कंट्रोल ओवर प्राइसिंग, और जो सेलर जो गुड बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है. देयर इज नो टू एंट्री, दैट मीन्स बैरियर है, इजीली एंटर नहीं कर सकते. दी फर्म्स आर प्राइस मेकर. एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हो रेलवे. रेलवेज में गवर्नमेंट की मोनोपोली है ऑलमोस्ट, हालांकि अभी थोड़ी सी प्राइवेट ट्रेन इंट्रोड्यूस किए, बट स्टिल बिफोर दैट इट वाज मोस्टली मोनोपोली. तो गवर्नमेंट वाज द प्राइस मेकर. गवर्नमेंट जो चीज डिसाइड करे उतने पे ही टिकट्स बेच सकती है. एंड देयर वाज आल्सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कुड बी देयर कि कुछ लोगों को जो है सस्ता बेचे, कुछ लोगों को जो है ज्यादा महंगा बेचे. ठीक है, क्योंकि एक फर्म है उसके हाथ में पूरा कंट्रोल. Then there is monopolistic competition. There are large number of firms, right? बहुत सारी firms है, right? Free entry exit होगा. ठीक है, so देखो firms बहुत सारी है और entry exit भी free है. ठीक है, but the problem is there is product differentiation. So similar नहीं कर रहे, see product with somewhat similar, जैसे बिस्किट है, but उसमें क्या है, ब्रांड का डिफरेंस. कोई पार्ले जी का है, कोई सनफीस्ट का है, और कोई जो छोटे छोटे स्मॉल ब्रांड्स है. नाउ अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो बड़े ब्रांड्स है, सनफीस्ट, पार्ले जी, इनके पास थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल होगा कंपेयर टू स्मॉलर ब्रांड्स. इसीलिए एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाता है. और यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट आर इन्वॉल्व. सेलिंग कॉस्ट मतलब कि बेसिकली जो बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब करना, उसके कॉस्ट लगते हैं. और नॉन प्राइस कंपटीशन होता है. मतलब कंपटीशन क्या होता है, ये ब्रांड्स क्या है कि प्राइस में कम करके नहीं, ये बोलेंगे कि आप पार्ले जी खरीदो, इसको स्क्रैच करो, आपको जो है रिवॉर्ड मिलेंगे, राइट. सो इस तरीके से नॉन प्राइस वे में कॉम्पीट किया जाता है इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. इट इज नॉर्मली मोस्टली कई जगह जो है ये देखा जाता है. ओलिगोपोली मतलब कुछ ही जो है मार्केट में जो है कुछ ही फ्यू फर्म्स है, राइट, फ्यू सप्लायर्स है. जैसे आपने देखा ना ऑयल सप्लाई में ओपेक है, तो एक कार्टेल बनाया, तो कुछ ही सप्लायर्स है, दे मेक अ कार्टेल आउट ऑफ इट. ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है विद नो सब्स्टिट्यूट. जो प्रोडक्ट वो सप्लाई करे क्रूड ऑयल, होमोजेनियस है, आप किसी का भी लो सेम है, काम सेम करेगा, राइट, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ठीक है, तो अब तो बहुत सारे आ गए सोलर एनर्जी वगैरह, पहले जो है कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता था. सेलिंग कॉस्ट इज इन्वॉल्व, एडवर्टाइजिंग वगैरह ये सब चाहिए होता है कई बार. इंटरडिपेंडेंस होता है, तो सारे उनमें सी कि आपका राइवल या आपके साथ वाले जो फर्म्स है, फ्यू फर्म्स है ना, 3-4 है, तो साथ वाले क्या कर रहे हैं वो रहता है. ठीक है, जैसे अगर अभी हम देखें तो एयरटेल और जियो दो ही मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स बचे हैं, राइट. वोडाफोन वगैरह ये हैं, तो बहुत कम जो है आपके टेलीकॉम प्लेयर्स है. तो देयर इज इंटरडिपेंडेंस. सो जियो क्या करता है, उसका सक्सेस डिपेंड करता है कि एयरटेल वाला क्या कर रहा है. ठीक है, और कई बार ये लोग क्या है कार्टेलाइजेशन कर सकते, कुछ चीज पे एग्री कर सकते कि ये चीज हम ऐसे करेंगे. अभी आप देखो कि सबके प्लान्स ऑलमोस्ट सिमिलर है. ठीक है, तो ग्रुप बिहेवियर मतलब सिमिलर टाइप से, सब जैसे ये सब एयरटेल वगैरह सब सिमिलर प्लान दे रहे, वहां पे हर कोई सिमिलर टाइप के प्लान्स देगा. ठीक है, एंड प्राइस रिजिडिटी. तो प्राइसेस जो है इनमें ये लोग एक बार सेट कर लेते हैं, सब लोग प्राइस अपने उसके एक फिक्स तरीके से आसपास ही सेट करते हैं. ठीक है, जो सेट किए हुए हैं.
ये तो ज्यादा चेंजेस नहीं होते और प्राइस इजीली चेंज भी नहीं करते ये, ओके। So this is oligopoly. So with this we complete this chapter. Okay. आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हो गए हैं। कल अब हम करेंगे जो नेक्स्ट जो अब हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके उसके कॉन्सेप्ट्स करेंगे और उसके बाद जो है हम नेशनल इनकम जो है। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।